Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss syllabus of Sargodha University for part 1 and part 2 for first annual and second annual. Syllabus is same for first and second annual, and there are total 5 subjects in your part 1 and also 5 subjects in your part 2. In part 1, your first paper is of classical poetry. It carries 100 marks. And second paper is of drama, third paper is fiction, fourth one prose, and last is American literature. So these are total 5 subjects, and every subject carries 100 marks. So total marks of these 5 subjects are 500. I will also tell you the paper setting of these 5 subjects, that what type of question paper you will receive in your examination. Firstly, let's discuss in detail your all subjects in part 1, that how much syllabus you have to read. In your part 1, your first subject, which is classical poetry, your first writer is Geoffrey Chaucer, and you have to read the poem The to the Canterbury Tales. It's a prolonged poem, it contains many characters, and you have to read at least 10 to 15, at least 10 to 15 characters for attempting your paper correctly. But obviously, if you prepare whole character, then you can attempt your question more accurately. So you should try to read all these character lists, and after completing whole characters, you can also attempt your objective paper very easily and very quickly. Here's your next poet, Spenser, and you have to read the poem Fairy Queen, Book 1, Canto 1. It's also a long narrative type of poem, and if you read its text, then objective part will be very easy for you. Your third poet is John Milton, and these are 2 books, Book 1 and Book 9, in your syllabus of Paradise Lost. Fourth one is William Shakespeare, and विलियम शेक्सपियर के कुछ सॉनेट्स हैं जो आपने करने हैं. सॉनेट्स के नेम्स भी यहाँ पे मेंशन है. नंबर 1, व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोज. सेकंड, शैल आई कंपेयर दी टू आवर समर्स डे. Third is weary with toil, I haste me to my bed. Fourth is why did you promise such a beauteous day. Fifth, that you has her, it is not all my grief. Sixth is take all my love, yet take them all. Next is what is your substance, whereof are you made. And last sonnet is oh how much more does beauty have seen. तो अगर आप इसका भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव पार्ट ही है आपका, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपके 2 इसमें जो है वो कैटेगरीज रखी गई हैं पेपर में. फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज़ सब्जेक्टिव. तो आप अगर सब्जेक्टिव में एज अ होल उसमें फ़ेल होते हैं तो फिर आपका अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर भी होता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. और अगर आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर कर लिया है लेकिन सब्जेक्टिव में आप फेल हैं तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको पूरे पेपर में ही फेल कंसिडर किया जाएगा. तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम आप जो है वो टेक्स्ट एटलीस्ट 1 टाइम उसको ज़रूर रीड आउट कर लें. योर फिफ्थ राइटर इज़ जॉन डन, और इसकी कुछ सिलेक्टेड पोएम्स हैं फ्रॉम लव एंड डिवाइन पोएम्स. I tell you names. Number 1 is The Good Morrow. Number 2, Go and Catch a Falling Star. 3 is The Sun Rising. 4th, Song है Sweetest Love, I Don't Go. 5th is A Valediction of Weeping. Next is Valediction Forbidding Morning. And 7th is The Expiration. उसके बाद Divine Poems में से हैं Holy Sonnets हैं Hymn to God the Father. नेक्स्ट होली सोनेट है hymn to Christ, एंड लास्ट इज होली सोनेट a hymn to God my God. और आपका जो लास्ट पोइट है इट्स अलेक्जेंडर पॉप. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोइट, एंड यू विल रीड द पोएम रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1, 2 and 5.
यानी कि अगर आप पूरी पोएम पढ़ लें वैसे तो आपका ये है कि कंसेप्ट ही और ज़्यादा क्लियर होता है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप पूरी बुक उसको स्टडी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके जो सिलेबस में इंक्लूड हैं और जिसमें से आपको क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कैंटोज हैं, विच आर टोटल 3 कैंटोज, 1, 2 एंड 5th। ये 3 कैंटोज को आपने प्रिपेयर करना है और एटलीस्ट 1 टाइम रीडिंग भी इसकी जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट योर सेकेंड पेपर विच इज़ ड्रामा। नंबर 1 इज सोफोक्लीस। ये राइटर है और उसने जो प्ले लिखा है इट्स इडिपस रेक्स। सेकेंड इज क्रिस्टोफर मार्लो और इसका जो प्ले आपके सिलेबस में है इट्स जियो ऑफ माल्टा। थर्ड वन इज़ विलियम शेक्सपियर और इसका प्ले ओथेलो प्लस द टेम्पेस्ट। ये 2 प्लेज हैं जो आपने इसके पढ़ने हैं और इन दोनों को ही करने की बजाय अगर आप एक भी कर लें दोनों में से, एक को चॉइस पे छोड़ दें तो भी वो ठीक है। और जो लास्ट बहुत इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि वेरी इजीएस्ट प्ले वो ऑस्कर वाइल्ड का है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये आपके सेकंड पेपर यानी ड्रामा के राइटर्स हैं। फिर उसके बाद आपका फिक्शन यानी नावल आ जाता है। थर्ड पेपर नंबर 1 इज़ हेनरी फील्डिंग। इसने नावल लिखा है जोसेफ एंड्रयूज़ के नाम से और ये इसको कंसीडर करता है कि ये एक एपिक टाइप ऑफ नावल है। सेकंड नावलिस्ट आपकी फ़ीमेल नावलिस्ट है जेन ऑस्टन के नाम से और इसने जो नावल लिखा है इट्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। फिर चार्ल्स डिकेंस आ जाता है और उसके प्ले का नाम है टेल ऑफ 2 सिटीज़। उसके बाद फोर्थ है जॉर्ज एलियट, ये भी एक फ़ीमेल नावलिस्ट है और इसने जो नावल लिखा है जो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है द मिल ऑन द फ्लोर्स। और 5 आपका जो 5 नंबर पे राइटर आता है वो है थॉमस हार्डी और इसके नावल का नाम है टेस्ट ऑफ द अर्बर वेल्स। तो ये आपके टोटल जो हैं वो 5 राइटर्स हैं नावल में। उसके बाद पार्ट 1 का जो 4th सब्जेक्ट है इट्स प्रोज। नंबर 1 आपका जो राइटर है इट्स सर फ्रांसिस बेकन। इसके कुछ ऐसेज हैं जो सिर्फ आपने करने हैं, उन्हीं को अगर आप स्टडी करेंगे तो वो काफ़ी रहेंगे। वैसे तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा बहुत रेडी कर लेते हैं और ये बहुत बेटर टेक्निक होती है किसी भी राइटर की नरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आप उसके कंट्रास्ट में उसकी बाकी भी जो नरेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं। लेकिन जो आपकी सिर्फ सिलेबस में और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है और आप सिर्फ अपने सिलेबस पे ही फोकस करेंगे तो फिर इसके कुछ ऐसे हैं जो आप कर लेंगे लाइक ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ एम्बिशन, ऑफ स्टडीज़, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ स्टिमुलेशन एंड डिसटिमुलेशन। ये सिर्फ कुछ ऐसे हैं जो आपने बेकन के करने हैं। सेकंड है जोनाथन स्विफ्ट, गुलिवर्स ट्रैवल के नाम से इसकी वो है एक स्टोरी है और इसमें बुक 1 और 4 सिर्फ वो आपने करनी है। उसके बाद लैटिन है और इसकी जो है वो कुछ आपको एसेज वो दिए गए हैं विच आर 2 एसेज, एंड ऑफ जनरल गॉर्डन एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है। इसमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो आपने स्टडी करने होते हैं। ये समझ लें कि गुलिवर ट्रैवल्स की तरह ही है, बिल्कुल डिफरेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को रख के तो फिर ये पूरी स्टोरी नरेट की गई है। 4th वन इज़ बर्टन रसल। रसल के भी कुछ सिलेक्टेड एसेज हैं जो आपको दिए गए हैं विच आर ओनली 6 एसेज। Philosophy of politics, the future of mankind, philosophy for layman, the function of a teacher, ideas that have helped mankind and ideas that have harmed mankind। और लास्ट आपका जो इसमें राइटर है वो है एडवर्ड सैड और एक ही ऐसे है उसका बहुत शॉर्ट सा है इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड एम्पियरलिज्म। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट पेपर, ये है अमेरिकन लिटरेचर। इसमें आपके जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अमेरिकन लिटरेचर मींस अमेरिकन राइटर्स के बारे में और अमेरिकन सोसाइटी के बारे में आपने इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जितने भी राइटर्स की आपको लिस्ट नज़र आएगी कि ये सारे के सारे अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हैं
और इसमें एक चीज़ की गई है कि जो पहले तो आपने पोइट्री को अलग सेक्शन में पढ़ा, नावल को अलग पढ़ा, ड्रामा को अलग पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सबकी मिंगलिंग करके आपको दी जाती है, यानी कि पोइट्री भी इसमें मौजूद है, इसमें ड्रामा भी है, नावल भी है। 3 सेक्शंस हैं और सारे के सारे म्यूचुअली ही आपको दे दिए गए हैं। पोइट्री में हमारे पास जो फर्स्ट राइटर है वो है वाल्ट वाइटमैन। इसकी आपके पास 8 पोइम्स हैं, सिलेक्टेड पोइम्स आपने ये करनी है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट की भी आपके पास सेम इतनी, यानी कि 8 पोइम्स ही हैं जो आप पढ़ेंगे। फिर जॉन एशबरी है, इसकी जस्ट 2 पोइम्स आपको दी गई हैं, मेल्डिक ट्रेन्स एंड द पेंटर। और लास्ट पोइट जो इसमें है वो है रिचर्ड विल्बर, उसकी भी 2 पोइम्स हैं, आफ्टर द लास्ट बुलेटिन, स्टिल सिटीजन स्पैरो। फिर इसमें जो ड्रामा इंक्लूड किया गया है वो ओनील का है, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। होम कमिंग, यानी कि ये एक ट्रिलॉजी है और इसमें जो एक एपिसोड, या फिर समझ लें कि जैसे इडिपस है वो भी एक ट्रिलॉजी है और इसमें सिर्फ एक एपिसोड ही आपको दी गई है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, होम कमिंग के नाम से एक एपिसोड है और वो आपने इसमें पढ़नी है। बाकी उसकी 2 एपिसोड्स वो उसको आपने नहीं पढ़ना बिल्कुल, बस उसकी समरी अगर आपके पास है तो आप चीज़ों को बेटरली एक्सप्लेन कर सकेंगे, इसलिए जस्ट समरी रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ड्रामा है मिलर का द क्रूसिबल, और नावल भी 2 आप में इसमें ऐड किए गए हैं आपके, अर्नेस्ट हेमिंगवे अ फेयरवेल टू आर्म्स और टॉनी मॉरिसन का जैज। ये पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस है। उसके बाद हम देखेंगे एम ए इंग्लिश पार्ट 2। ये फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि दोनों एनुअल सिस्टम में सेम सिलेबस ही होता है। इसमें भी आपके पास टोटल 5 पेपर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आपको 5th पेपर में चॉइस दे दी जाती है, यानी कि ऑप्शनल पेपर होता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स है, एसेज हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, या फिर लिटरेरी स्टडी है अराउंड द वर्ल्ड। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसको भी डिटेल में देख लेते हैं कि इसके कितने सेक्शंस हैं और क्या क्या इसमें हमने स्टडी करना होता है। नंबर 1 पे है मॉडर्न पोइट्री। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पार्ट 1 में आपने क्लासिकल पोइट्री पढ़ी और सेकंड आप जब पार्ट 2 में पढ़ते हैं ये है मॉडर्न पोइट्री, यानी कि इसमें क्लासिकलिज्म का इतना ज़्यादा टच नहीं मिलता। ये सारे मॉडर्न राइटर्स हैं जो आप स्टडी करते हैं। और पोइट्री के फिर यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं फर्दर। सेक्शन 1 में फर्स्ट राइटर है विलियम ब्लेक और उसके सॉन्ग्स हैं कुछ, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो आपने पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में जो हैं वो आते हैं टोटल इसके दोनों में से, इनोसेंस और एक्सपीरियंस में से 5 पोइम्स हैं। नंबर 1 द डिवाइन इमेज, नंबर 2 होली थर्सडे 1, नंबर 3 द लिटिल ब्लैक बॉय, द चिमनी स्वीपर, अ पॉइजन ट्री। सेकेंड इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, इसकी भी 3 पोइम्स हैं। पीबी शाले है, उसकी आपके पास 4 पोइम्स हैं। जॉन कीट्स, उसके ऑड्स हैं कुछ जो आपने पढ़ने हैं विद पोइम एंडोमाइन, और उसकी भी 50 लाइन्स हैं। फिर सेक्शन 2 में 3 राइटर्स और हैं, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. यीस्ट और फिलिप लार्किन। पार्ट 2 में सेम ऐसे ही है जैसे पार्ट 1 में आपने ड्रामा पढ़ा, इसमें भी सेकंड पेपर आपका ड्रामा का ही है। और फर्स्ट ड्रामा आपका है हेनरिक इब्सन का हेडा गैबलर, सेकंड है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो, एडवर्ड बॉन्ड का है द सी, और लास्ट प्ले है आपका एंटन चेखोव चेरी ऑर्चर्ड। उसके बाद नावल है, ये आपका 3rd पेपर है। नावल में भी आपके पास 5 टोटल राइटर्स हैं। जोसेफ कॉनरेड, हार्ट ऑफ डार्कनेस, D.H. लॉरेंस ने लिखा है सन्स एंड लवर्स, वर्जीनिया वोल्फ फीमेल नावलिस्ट है, टू द लाइट हाउस, शिन्वा अशबे, थिंग्स फॉल अपार्ट, एंड 5 आपका जो नावल है ये है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ये लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। 4th पेपर जो है ये फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा या फर्स्ट पार्ट में प्रोज की जगह यहाँ पे रखा गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे 6 टोटल जो है वो आपको बल्कि 5 राइटर्स और 6 जो है वो आपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाला एक क्वेश्चन उसको रेडी करना होता है।
और वो कंपल्सरी इसमें आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पोइट्री में या जैसे आप समझ लें कि आपको अगर सब्जेक्टिव पार्ट है उसको भी आपने मस्ट पास करना है, फिर ऑब्जेक्टिव है उसको भी। तो इसी तरह ये कंपल्सरी ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई भी वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन करने के लिए पोएम्स दे देते हैं या फिर कोई भी स्टैंजा आपके पास होता है, तो आप अगर उसको नहीं लिखेंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि फिर कंपल्सरी क्वेश्चन ही उसमें मौजूद नहीं है, तो बाकी थ्योरी भी आपकी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसमें जो बाकी 5 राइटर्स हैं आपके पास, पहला राइटर एरिस्टोटल, उसकी बुक है पोएटिक्स के नाम से, जिसमें उसने डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स बताई हुई हैं, वो आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिलिप सिडनी है, उसने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री के नाम से कैसे ही लिखा है, एक क्रिटिकल कमेंट्स उसमें करते हुए। उसके बाद थर्ड टी.एस. एलिट है, इसकी भी कुछ आगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से समझ लें कुछ इसके एसेज हैं या कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे वो क्रिटिकली कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। क्लींस ब्रूक्स है, और लास्ट है आपकी कैथरीन बेल्से। और बेल्से जो है वो भी क्रिटिकल प्रैक्टिस की ही बात करती है कि कैसे एक क्रिटिक को किस तरह से जो है वो अपना क्रिटिसिज्म अप्लाई करना चाहिए। और इसमें बाकी राइटर्स भी तकरीबन यही बता रहे होते हैं कि हाउ अ क्रिटिक शुड बी, कि किस तरह से जो है वो उसको होना चाहिए, और व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्रिटिक। और इस तरह की फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है इसमें। उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो आप जो भी सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर लिंग्विस्टिक्स आपने स्टार्ट किया है तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर अगर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो आपके पास सारी होती हैं, यानी कि इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप उसी से रिलेटेड फिर आगे सारा स्टफ़ जो है वो रेडी करेंगे। अब आपको मैं पेपर सेटिंग का बता देती हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका जो पेपर सेट किया जाता है वो इस तरह से कि टोटल आपको 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7। और इसमें जो फर्स्ट आपका पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है विच इज़ कंपल्सरी, उसको आप बिल्कुल क्विट नहीं कर सकते। और जो आपने लिखना है वो भी आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के नाम से कंपल्सरी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका दुरुस्त होना और लिखा हुआ होना दोनों ज़रूरी है। इसी तरह ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है कि सब्जेक्टिव से पहले आपने ऑब्जेक्टिव उसको प्रिपेयर करना है और फिर उसको लिखना भी है पेपर में, मतलब आप क्विट नहीं कर सकते। और इसमें होता है कि आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, और 10 मार्क्स उसके टोटल आपके पास होते हैं। 20 मार्क्स, यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चंस लिखते हैं तो हर क्वेश्चन, हर शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और आपका जो आंसर है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो 2 और 3 लाइंस पे कंटेन होना चाहिए, ना ही आप इससे ज़्यादा करें और ना ही इससे कम करें। यानी कि ये एक बड़ी जो है वो सूटेबल सी आपको रेंज बता दी जाती है लाइंस की कि आपका शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इट्स नॉट लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने बस शॉर्टली टू द पॉइंट उसमें बात कर लेनी है। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट होता है, उसमें आपने टोटल फिर जो है वो बाकी 3 क्वेश्चंस वो करने होते हैं। और यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चॉइस है आपके पास। अगर आपने इवन 4 राइटर्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप बहुत ही इजीली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके लिए एक टिप जो मैंने आपको पहले बताई है ऑब्जेक्टिव पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए, कि आपने टेक्स्ट रीडिंग जो है वो अगर की होती है फिर आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। और ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने के लिए आप अपनी कुछ और बुक्स होती हैं जो परचेज़ कर सकते हैं, जो सिर्फ और ऑब्जेक्टिव पार्ट पे कंटेन होती हैं। और वो फिर आप जो जहाँ से भी जिस भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको बेटर गाइड कर देते हैं कि आप इस पब्लिशर की बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर लें, या फिर वो ख़ुद आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्रिटिकली, क्योंकि आपने इसको देखना होता है और सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी होती है, तो ये
मोस्टली कुछ जो है वो या तो डेट्स पूछ ली जाती हैं आपसे, या करैक्टर्स आ जाते हैं, या कुछ सीन्स, अगर लेट्स सपोज कि हम ड्रामा की बात कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक सीन्स दे के पूछ लिया जाता है कि इस सीन का थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपके पास प्रॉपर गाइडेंस और अवेयरनेस होना जो है वो ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का था टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सिलेबस साफ सरगोदा यूनिवर्सिटी फॉर एमए इंग्लिश पार्ट 1 एंड 2। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आया, यू कैन आस्क इनटू कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।